हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। Role of computer and information technology IT as the mean of good governance. There is the most important the role of computer in a good governance. From the discuss lead to the fur, you must have a notice that the essence of good governance is being people friendly and is a power sharing system on the one hand and being responsible, there is accessible of moral, transparent and corruption free system on the other. The use of computer and information technologies are visualized as a very effective tools of the good governance. It is a seek of improvement here. The delivery of service to the people at the low cost and the next year empowerment of people through the dissemination of information. And next year openness and transparency in the working of government. The invention and introduction of the new idea and concept in the performance by their government and people. Effective linkage of between the citizen and the administration, and comprehensive monitoring and assessment of the performance of the government. Computer thus can increase the people as a reach to information relating to rules, regulation and procedure are about the welfare and development schemes of the government are about the welfare and development scheme of the government and information about the weathers or climatic that can be used by farmer and citizen. It is said to the corruption is the product of face-to-face meeting between to the is the grabs and the receipt of decision. Computer can reduce their personal contact to the corruption. For example, a farmer can get his the record copy on the computer. A citizen can pay on bill or tax without actually going to be cash counter and suffering from the agony of the long queues and the losing of errand of the day. The Ganodot as a program began implement in the Dhar district of Madhya Pradesh in India, and there is a provide a number of service like a online registration, copy of land record, agriculture procedure, action and the center of the people at the nominal price. The list may be further include facility like eligibility rule and application for the loan, price of seeds, fertilizer and tools, the power cut schedule, ability of the diesel, etc. Such as a system would be cut administrative delays and which is another source of corruption. It will reduce time to the finance cost of their financial cost of their facility as the citizen would be get through a computer at their doorstep. The government as a Karnataka using computer for transparency in the educational admission and statement or transfer and payment of salary of teacher. Computers are also used to now that implementation of the instruction and order for the chief minister. It has also been used to be a management of the constituency and prepare summarized data of the major project in a health, housing and other social welfare scheme. In the Kerala is a computerized project known as the Friends is a fast, reliable, instant efficiency network and disbursement of service. Is working to provide a range of public service. Through the computer to be people, the central government in India has also introduced a computerized system of administration in the various department and ministry like a railways, human resource development, rural development and planning commission and UGC. उसके पश्चात हमारे समक्ष आया कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी जो है भूमिका सुरक्षा शासन साधन के रूप में। देखिए आज के समय में जैसे आधुनिक युग है, वहाँ पर कंप्यूटर की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हर क्षेत्र में पारदर्शिता की जरूरी है और लोग भी चाहते हैं, पारदर्शिता ही चाहते हैं। इसलिए कंप्यूटर जो है कई राज्यों में अपना जो है भली भांति कार्य कर रहा है, जो कि बहुत जरूरी भी है और सरकार की तरफ से भी जो है कंप्यूटर को काफ़ी प्रोत्साहन भी दिया गया है। अब तक चर्चा के अनुसार हमें इस बात को ध्यान से समझना होगा कि अच्छे शासन का सार लोक हितैषी तथा सत्ता में भागीदारी होना है। एक तरफ तो संवेदनशील पहुंच में नैतिक पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होना दूसरी तरफ है। कंप्यूटर तथा सूचना औद्योगिक के प्रयोग को अच्छे शासन के प्रभावशाली साधन के रूप में देखा जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित सुधार की अपेक्षा की जा सकती है। कुछ यहाँ पर सुधार भी बताए गए हैं। पहला सुधार तो यही होता है कि जन सेवाओं की कम मूल्य पर आपूर्ति, जो जन सेवाएं हैं उनमें कम से कम जो है पैसों पर उपलब्ध होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
सूचना प्रसार द्वारा जन सशक्तिकरण का जो है प्रयास करना ये भी बहुत जरूरी है। सरकारी कार्य में खुलापन और पारदर्शिता होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार और जनता द्वारा नए विचारों और अवधारणाओं को सरकार की कार्य प्रणाली से जोड़ना ये भी बहुत जरूरी है और ये कार्य कंप्यूटर भलीभांति कर सकती है। नियमों एवं जो है प्रबंधियों को संबंध जानकारी या सरकार की कल्याणकारी एवं जो विकासपरक योजनाओं की जानकारी अथवा किसानों और नागरिकों को मौसम संबंधी जानकारी देने के जो है कंप्यूटर काफ़ी सुलभ एवं आसान बना देता है। कहा जाता है कि भ्रष्टाचार निर्णय लेने वाले और स्वीकार करने वाले के रूबरू होने का जो है दुष्परिणाम है। उनके बीच कंप्यूटर का रिकॉर्ड व्यक्तिगत संबंधों को कम करके भ्रष्टाचार को दबा सकती है। उदाहरण के लिए एक किसान अपनी भूमि का रिकॉर्ड कंप्यूटर से प्राप्त कर सकता है। एक नागरिक अपने कारों आदि की भुगतान कंप्यूटर पर बिना लाइन में लगे, बिना काम छोड़े अथवा कैश काउंटर पर गए बिना ही कार्य कर सकता है। भारत में मध्य प्रदेश के धारा जिले में ज्ञान दूत कार्यक्रम लागू किया गया है, जो अनेक प्रकार की सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप ऑनलाइन पंजीकरण, भूमि रिकॉर्ड की प्राप्ति, कृषि उत्पाद के नीलामी केंद्र की जानकारी बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते हैं, जो कि बहुत जरूरी भी है और बहुत अच्छा भी है। इस सुविधाओं में जो है ऋण प्राप्त करने की जो है नियमबंदी, बीजों की मूल्य, उर्वरक तथा कृषि यंत्र, बिजली कटौती का समय, डीजल की उपलब्धता को जोड़ना जा सकता है। इस व्यवस्था में प्रशासनिक विलंबन घटेगा, जो भ्रष्टाचार का एक कारण है। इससे नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं पर लगने वाली कीमत एवं समय भी बचेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी सरकारी कार्य करवाना होता है तो लंबे लंबे लाइन लगने पड़ते हैं और आज कल के रूप में छोड़ दिया जाता है, तो लोगों का दिहाड़ी भी खत्म होती है और इससे जो उनकी परेशानी भी और बढ़ जाती है। नागरिकों को ये सुविधाएं उनके घर पर ही मिल जाएगी। कर्नाटक की सरकार शैक्षिक दाखिलों और चयन शिक्षाओं का तबादले का जो है वेतन देने के मामलों में पारदर्शिता के लिए कंप्यूटर का प्रयोग कर रही है। कंप्यूटरों को जो है मुख्यमंत्री के आदेशों और हिदायतों के पालन की स्थिति में जानने के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है। यह क्षेत्र के प्रबंधन के लिए उपयोग किया जा रहा है तथा इससे स्वास्थ्य, आवास और अन्य सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का भी सार संक्षेप बनाने का काम भी लिया जा रहा है। केरल में एक जो कंप्यूटराइज योजना फ्रेंच के प्रयोग किया जा रहा है, जो तेज, विश्वसनीय, तुरंत समक्ष नेटवर्क के रूप में सेवाओं का वितरण कर रहा है। यह लोगों की सेवाएं उपलब्धता करवा रहा है और भारत की केंद्रीय सरकार ने भी रेलवे, मानव अधिकार संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास योजना आयोग तथा जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे अनेक विभागों को मंत्रालय में प्रशासन की जो है कंप्यूटराइज व्यवस्था को लागू किया है। कहते हैं अगर सभी बातों को देखा जाए तो कंप्यूटर जो है इस भ्रष्टाचारी और जो है गुड गवर्नेंस के लिए इम्पोर्टेंट भूमिका अदा कर सकता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत समझ वाली थी। अगला चैप्टर और भी इंपॉर्टेंट है, तो अगला चैप्टर देखना मत भूलना। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि आपको जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक भी पहुँचाने में तिरपान स्टडी सेंटर का सहायता करना है। दूसरी बात ये रहता है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरी बार प्राप्त करने में आपको बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करोगे टॉपिक, आपको तिरपान स्टडी द्वारा बनाया गया कोई भी वीडियो प्राप्त नहीं होगा। पहले वो वीडियो आएगा जो पहले यूट्यूब पे मौजूद है। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उसका आपको होम पेज मिल जाएगा और वहाँ पर आपको पता है वीडियो के ऑप्शन में सारे वीडियो के लाइन से आपको मिल जाएगा। जो वीडियो आपके काम के हैं उसको सेव कीजिए, देखिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।